Question 1. Column 1 gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor, and column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match column 1 and column 2 with appropriate relations. दिया है column 1 और column 2. column 1 में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड एंड करंट डेंसिटी. सिमिलरली column 2 में इनके फार्मूले दिए हैं. तो हम देखेंगे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी is given by E upon m into tau, where small e is charge and capital E is electric field, and m is mass of electron, and tau is the relaxation period. So electrical resistivity, that is rho, also is given by m upon n E square into tau, where tau is relaxation period and n is charge density. तो यहाँ से आएगा tau will be equal to m upon n E square into rho. So relaxation period will be given by m upon n E square rho. Also current density, that is J, denoted by J, is given by current per unit area, that is given by n E A V D upon A, where V D is drift velocity. तो ये आएगा अपने पास A कटेगा तो यहाँ से आएगा J, that is current density will be given by n E into V D, where E is charge. Also we know E by J, that is electric field divided by current density, is given by E upon sigma E, where sigma is conductivity. तो यहाँ से आएगा 1 upon sigma is equals to rho, या E upon J is equals to rho. तो या यहाँ से हम लिख सकते हैं rho will be given by E by J. तो rho is resistivity and sigma is conductivity. As we know, sigma is conductivity and is given by sigma is 1 upon rho, that is 1 upon resistivity. तो ऑप्शन देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला है, दैट इज वी डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टाउ. तो ए में आएगा 3. तो बी जो दिया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दैट इज रो, रो इज गिवन बाय ई बाई जे. ई बाई जे इज इन ऑप्शन 4. तो बी में आएगा 4. और सी इज रिलैक्सेशन पीरियड, दैट इज टाउ, दैट इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो, दैट इज इन ऑप्शन 1. और करंट डेंसिटी, दैट इज एन ई वी डी. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohms. What will be the effective resistance if they are connected in series? As these have equal length, equal cross sectional area and same material, that means R1 will be equal to R2, equal to R3, equal to R4. Let us say will be equal to R. तो गिवन क्या है, दैट इज गिवन जो है दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.25 ओम्स, जो अभी दिया है क्वेश्चन में. तो जब पैरेलल अरेंजमेंट है तो इसके लिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4. तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन R. तो R इक्विवेलेंट दिया है अपने पास 0.25 ओम, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन 0.25 ओम इज इक्वल्स टू 4 बाई R. तो यहाँ से आएगा R इज इक्वल्स टू 1 ओम. फॉर सीरीज अरेंजमेंट तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. तो R equivalent will be equal to 4R, as these are all, as R1 is equals to R2 is equals to R3 is equals to R4 is equals to R. तो R equivalent will be equal to 4R. तो R का वैल्यू हमने अभी निकाला ऊपर से, R is equals to 1 ओम. तो यहाँ से आएगा R equivalent will be equal to 4 into 1, that is 4 ohms. 4 ohm, that is in option D. Next question. 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 are connected as shown in the circuit. The ratio of I3 by I1 of currents in terms of resistance used in the circuit is. Circuit दिया है R1, R2 और R3. यहाँ से करंट जा रहा है R1, R2, I1, I2 and I3. तो फ्रॉम सर्किट हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3. एज R2 एंड R3 जो रेजिस्टेंस R2 और R3 है वो पैरेलल में है, तो यहाँ से
हम लिख सकते हैं वोल्टेज रिमेन्स सेम एज अक्रॉस दीज रजिस्टर्स। तो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट रहेगा इन रजिस्टर्स के अक्रॉस। तो एज वी इज आई आर दैट इज ओहम्स लॉ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई टू आर टू इज इक्वल टू आई थ्री आर थ्री। तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आई टू विल बी इक्वल टू आई थ्री आर थ्री अपॉन आर टू। और जो टू इक्वेशन है, टू को पुट करेंगे वन में, वन जो हमने ऊपर निकाला है आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री। तो यहाँ से आएगा आई वन विल बी इक्वल टू आई टू, जो हमने यहाँ से निकाला आई टू इज इक्वल टू आई थ्री आर थ्री अपॉन आर टू। इसमें रिप्लेस करेंगे तो आएगा आई वन विल बी इक्वल टू आई थ्री आर थ्री अपॉन आर टू प्लस आई थ्री। डिवाइड करेंगे आई थ्री से दोनों दोनों साइड, तो यहाँ से आएगा आई वन बाई आई थ्री इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर टू प्लस वन। तो आई थ्री बाई आई वन निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आई थ्री बाई आई वन विल बी इक्वल टू आर टू अपॉन आर थ्री प्लस आर टू, दैट इज इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two solid conductors are made of same material and have same length and same resistance. One of them has a circular cross section of area A1 and the other has a square cross section of area A2. Ratio of A1 by A2 निकालना है। गिवन क्या है, गिवन है अपने पास रेजिस्टेंस सेम है R1 दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 और लेंथ भी सेम है दैट इज L1 इज इक्वल टू L2। और क्या है, और है सेम मटेरियल, सेम मटेरियल यानी रो विल बी सेम। तो एज रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो R is equals to rho L upon A, where rho is resistivity। तो resistivity is same as the material is same। तो यहाँ से आएगा R1 by R2 will be equal to L1 by L2 into A2 by A1। L1 और L2 सेम है तो ये कटेगा, और R1 और R2 भी सेम है तो ये भी कटेगा। तो यहाँ से आएगा A2 by A1 will be equal to 1, or we can say A1 by A2 will also be equal to 1, that is in option B। Next question, the equivalent resistance between A and B for the mesh shown in the figure। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इनके बीच रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एज वी कैन सी 4 ओहम दैट इज ये वाला 4 और ये 8, ये जो है ये सीरीज में है। 4 ओहम एंड 8 ओहम इज इन सीरीज, तो इनको ऐड हो जाएगा तो ये 8 प्लस 4 विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 12 ओहम। और ये जो 12 ओहम और ये 6 ओहम, 12 ओहम और 6 ओहम ये भी है पैरेलल में। तो 1/12 प्लस 1/6 दैट विल बी इक्वल टू 3/12 दैट इज 1/4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आएगा, ये जो है ये ट्रायंगल ऊपर, तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा 4 ओहम। और ये जो 4 ओहम और ये वाला 4 ओहम और ये 8 ओहम, ये तीनों जो है ये सीरीज में होंगे। तो 4 ओहम एंड 8 ओहम इज इन सीरीज, तो इनका सिंपली ऐड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 16 ओहम। तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन across A and B mesh, across A and B points in the mesh will be 16 ohm, that is in option B। Next question, a charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 power minus 10 volt meter inverse has a mobility in meter square volt inverse second inverse। निकालना क्या है, मोबिलिटी। We know mobility, that is mu is given by Vd upon E, where Vd is drift velocity and E is electric field। drift velocity दिया है 7.5 into 10 power minus 4 और electric field दिया है 3 into 10 power minus 10। तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 2.5 into 10 power 6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स इज द राइट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन, दैट इज इन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हम देखेंगे बी में भी 2.5 इंटू 10 पावर लेकिन -6 है, और ए में है 10 पावर 6, क्योंकि हमारा आंसर जो है 10 पावर प्लस 6 आया, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। निकालना क्या है, value of resistance or tolerance। According to we know according to carbon color code for resistors, code of yellow is 4
and code of violet is 7. Also code of brown, that is multiplier, that is 10 power 1, and code of gold, that is tolerance, that is plus minus 5%. तो resistance will be given by 4 और 7. येलो का था 4 और वायलेट का है 7, तो रेजिस्टेंस विल बी 47 इंटू मल्टीप्लायर कितना था 10 पावर 1, तो रेजिस्टेंस विल बी 47 इंटू 10 पावर 1 ओम, और जो टॉलरेंस है वो गोल्ड देता है, दैट इज 5%. तो ऑप्शन सी 47 इंटू 10 पावर 1 दैट विल बी इक्वल टू 470 ओम एंड टॉलरेंस विल बी 5%, दैट इज इन ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sorry, next question. Which of the following graph represents the variation of resistivity with the temperature of copper? Copper क्या है? Copper metal है. तो we know resistivity of metals as a function of temperature increases with the increase in temperature. तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, लेकिन इंक्रीजिंग ग्राफ कौन से है? बी और डी में. ऑल्सो बट वी नो मेटल, ये जो मेटल्स है इनका ग्राफ है अपवर्ड्स और लीनियर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ऑल्सो वी नो resistivity, that is rho, is given by m upon n e square into tau, where tau is relaxation period or average time between collisions. एज टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो रिलैक्सेशन पीरियड है ये कम हो जाएगा, यानी कि एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन्स विल बी लेस. तो एज टाउ डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. रेजिस्टिविटी विल increase with the increase in temperature, that is in option B. B is the right answer.